Students, this is question of successive differentiation. It is given that y to the power 1 upon m plus y to the power minus 1 upon m is equal to 2x. Then prove that x square minus 1 y n plus 2n plus 1 x y n plus 1 plus n square minus m square y n is equal to 0. So we take y to the power 1 upon m plus y to the power minus 1 upon m is equal to x. This can be written as y to the power 1 upon m plus 1 upon y to the power 1 upon m is equal to 2x. Now we put here y to the power 1 upon m is equal to z. So it can be written as z plus 1 upon z is equal to 2x. Now taking LCM on the left, here the LCM is z. So this is z square plus 1 is equal to 2x divided by 1. Now cross multiply, we get z square plus 1 is equal to 2xz. We transform this 2xz in the left hand side. This can be written as 2xz z square minus 2xz plus 1 is equal to 0. This is the quadratic equation in z. So we find value of z, use Sridharacharya formula. So this is z is equal to minus b, here minus 2x plus minus under root b square, that is minus 2x square minus 4ac, value of a is 1 and c is 1, divided by 2a, that is 2 into 1. Here this can be written as z is equal to this minus multiply 2x plus minus under root. This minus 2x square is minus square is plus 2 square is 4x square, and this is minus 4 divided by 2. Now we take common 4 from this inside the square root, and taking square root we get this 2 under root x square minus 1 by 2. Now common this 2 and cancel out by this 2, we get z is equal to x plus minus root of x square minus 1. Now put value of z here, that is y to the power 1 upon m is equal to x plus minus under root x square minus 1. Now raising power m on the both sides, we get y is equal to x plus minus root of x square minus 1 whole power m. तो आप देख सकते हैं यहाँ पर गिवन है y टू पावर 1 अपॉन m प्लस y टू पावर माइनस 1 अपॉन m इज इक्वल टू 2x. इस y टू पावर माइनस 1 अपॉन m को हम डिनोमिनेटर में ले जाएंगे तो इसकी पावर का साइन प्लस में हो जाएगा, यानी 1 अपॉन y टू पावर 1 अपॉन m. अब यहाँ पुट कर रहा है y अपॉन m के प्लेस पे z, तो ये z प्लस 1 अपॉन z इज इक्वल टू 2x हो जाएगा. लेफ्ट हैंड साइड में हम यहाँ पर एलसीएम लेंगे, z इसको z अपॉन 1 लिख सकते हैं और 1 और z का एलसीएम z हो जाएगा. फिर यहाँ पर z को 1 से डिवाइड करने पर z आएगा, z को z से मल्टीप्लाई करने पर z स्क्वायर आएगा, प्लस z को z से डिवाइड करेंगे 1 आएगा, 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 1 आएगा. इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो z स्क्वायर प्लस 1 का मल्टीप्लिकेशन 1 से होगा, z स्क्वायर प्लस 1 आएगा, और 2x का मल्टीप्लिकेशन z से होगा, 2xz आएगा. 2xz को लेफ्ट हैंड साइड में ट्रांसफॉर्म करेंगे तो माइनस का 2xz हो जाएगा, यानी z स्क्वायर माइनस 2xz प्लस 1 इज इक्वल टू 0. ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है z में, तो इसके रूट निकालने के लिए सीरियाचार फार्मूले का यूज करेंगे. z इक्वल टू माइनस b के प्लेस पे यहाँ पर माइनस 2x है, प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर, तो b के प्लेस पे माइनस 2x है, इसका स्क्वायर करेंगे माइनस 4ac, a के प्लेस पे 1 है, दैट इज कोफिशिएंट ऑफ z स्क्वायर, c के प्लेस पे कांस्टेंट टर्म 1 है अपॉन 2a, 2 into 1. सो माइनस माइनस प्लस, हो z इक्वल टू 2x प्लस माइनस अंडर रूट, यहाँ पर माइनस 2x का स्क्वायर होगा, माइनस का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर 4x स्क्वायर, तो 4x स्क्वायर आ गया, माइनस 4 1 मल्टीप्लाइड बाई 1 1 हुआ, और 4 से मल्टीप्लाई हो गया 4 अपॉन 2. अब स्क्वायर रूट के अंदर ये 4 कॉमन मिल जाएगा, वो स्क्वायर रूट के बाहर आके 2 बचेगा, रूट x स्क्वायर माइनस 1 बाई 2. अब होल में से 2 कॉमन लेके इस 2 से 2 कैंसिल कर देंगे तो ये आ जाएगा x प्लस माइनस अंडर रूट x स्क्वायर माइनस 1. अब z की वैल्यू 1 अपॉन m उठा के यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेंगे तो 1 अपॉन m y टू द पावर 1 अपॉन m इक्वल टू x प्लस माइनस अंडर रूट x स्क्वायर माइनस 1. अब दोनों साइड में पावर m रेस कर देंगे तो लेफ्ट हैंड साइड से 1 अपॉन m पावर कैंसिल हो जाएगी, और राइट हैंड साइड में x प्लस माइनस अंडर रूट x स्क्वायर माइनस 1 की होल पावर m आ जाएगी. अब टेकिंग हियर पॉजिटिव साइन, taking positive sign here. So we get y is equal to x plus under root
x square minus 1 whole power n. Now we differentiate this with respect to x one time, we get y1 is equal to m x plus under root x square minus 1 whole power f, and we differentiate this x is 1, and differentiation of root x square minus is 1 is 1 upon 2 root x square minus 1, and now we differentiate this x square minus 1, we get here 2x. So this 2 is cancelled out. Now y1 is equal to m x plus root x square minus 1 whole power n, and here we take LCM, that is root x square minus 1 and root x square minus 1 plus x. Now we can write here y is equal to, and here the power is minus 1. So because differentiation of x plus root x square minus 1 whole power n, here this is power m minus 1. Now we take this m on x plus root x square minus 1 whole power, this m minus 1 and this power 1 is m minus 1 plus 1 divided by this root x square minus 1. Now we can see there here this 1 is cancelled out, so y1 is equal to, and root x square minus 1 multiply in left hand side, we write root x square minus 1, y1 is equal to this m and this is equal to y. here we can see here this is y. तो आप देख सकते हैं जब हम यहाँ पॉजिटिव साइन लेंगे तो y इक्वल टू होगा x प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 की होल पावर m. अब इसको हम वन टाइम डिफरेंशिएट करेंगे इसके रिस्पेक्ट में, तो y को डिफरेंशिएट करने पर d बाई डी एक्स आएगा जिसको हम y1 लिखेंगे, और इसका डिफरेंशिएशन करने के इसको x एज्यूम करेंगे, s की पावर का डिफरेंशिएशन होता है m, s की पावर n माइनस 1, तो ये हो जाएगा m x प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 की होल पावर n माइनस 1. फिर x प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 का डिफरेंशिएशन करेंगे तो s का डिफरेंशिएशन s के रिस्पेक्ट में 1 हो जाएगा, और रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 का डिफरेंशिएशन 1 अपॉन 2 रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 होगा. फिर एक्स स्क्वायर माइनस 1 का डिफरेंशिएशन करेंगे तो एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x आएगा, और 1 कांस्टेंट है तो उसका डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा. अब यहाँ पर 1 प्लस एक्स अपॉन रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 है, इसमें एलसीएम लेंगे तो रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 एलसीएम हो जाएगा, रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 1 से मल्टीप्लाई होगा, रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 आएगा और प्लस एक्स आएगा. आप देख सकते हैं न्यूमरेटर में x प्लस रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 की होल पावर m माइनस 1 है, और यहाँ पर x प्लस रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 की होल पावर 1 है, तो ये m माइनस 1 में 1 पावर ऐड हो जाएगी, और जो डिनोमिनेटर में रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 है वो ये आ गया. अब इसको हम लेफ्ट हैंड साइड में मल्टीप्लाई करेंगे तो रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 y1 इज इक्वल टू m, और ये आपका आप देख सकते हैं ये x प्लस रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 होल पावर m जो है ये y की इक्वल, इसके प्लेस पे y लिखते हैं. नाउ स्क्वायरिंग both side we get, now squaring both side we get, so squaring both sides we get x square minus 1 y1 square is equal to m square y square. So similarly when we take negative sign we get here also x square minus 1 y1 square m square y square. Similarly when we take negative sign we also find x square minus 1 y1 square is equal to m square y square. तो आप देख सकते हैं इधर हम स्क्वायर रूट हटाने के लिए दोनों साइड के स्क्वायर करेंगे, तो यहाँ से स्क्वायर रूट हटेगा, एक्स स्क्वायर माइनस 1 बचेगा, y1 स्क्वायर इक्वल टू m स्क्वायर y स्क्वायर. जब आप निगेटिव साइन लेकर यही करेंगे तो आप तभी आपको यही इक्वेशन बनेगी x स्क्वायर माइनस 1 y1 स्क्वायर m स्क्वायर y स्क्वायर. नाउ अगेन वी डिफरेंशिएट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x, सो टेकिंग हियर differentiate with respect to x, this can be written d by dx of x square minus 1 y1 square is equal to m square d by dx of y square. Now in the left side we use formula for differentiation of product of two functions. So first function x square minus 1 d by dx of second function that is y1 square plus second function y1 square
and d by dx of second function, that is x comma s1, and on the right hand side here y square, this is x, so this can be written d by dy of y square and dy by dx. Now here we can see that this d by dx of y1 square, so this can be written as d by dy1 of y1 square and dy1 by dx plus y1 square, and when we differentiate this x comma s1, we get 2x because 1 is constant, and m square, when we differentiate this y square with respect to y, we get 2y, and dy by dx, this can be written as y1. So here we can write again x square minus 1, and this differentiation of y1 square with respect to y1 is 2y1, and dy1 by dx, this can be written as y2 plus 2x y1 square is equal to 2m square by y1. Now we divide 2y1 from whole equation, we get x square minus 1 y2 plus x y1 is equal to m square y. तो आप देख सकते हैं यहाँ पर हम इसको दोनों साइड में फिर से डिफरेंशिएट करेंगे, बोथ साइड में, तो d by dx of x square minus 1 y1 square इक्वल टू m square d by dx of y square, बिकॉज m स्क्वायर कांस्टेंट है तो उसको डिफरेंशियल ऑपरेटर के बाहर रखेंगे। अब लेफ्ट हैंड साइड में टू फंक्शन के प्रोडक्ट के डिफरेंशिएशन का फार्मूला यूज करेंगे। इसमें फर्स्ट फंक्शन यानी x स्क्वायर माइनस 1 d by dx ऑफ सेकंड फंक्शन यानी y1 स्क्वायर प्लस सेकंड फंक्शन y1 स्क्वायर d by dx ऑफ फर्स्ट फंक्शन दैट इज x स्क्वायर माइनस 1। सिमिलरली राइट हैंड साइड में m स्क्वायर फिर d by dx ऑफ y स्क्वायर है, इसको हम इसे लिखेंगे d by dy ऑफ y स्क्वायर इनटू dy by dx, बिकॉज़ y स्क्वायर को ऐसे डिफरेंशिएट नहीं किया सकता। अब इसी तरीके से d by dx ऑफ y1 स्क्वायर को आप लिखेंगे d by dy1 ऑफ y1 स्क्वायर इनटू dy1 by dx, क्योंकि जब dy1 को dy1 से कैंसिल करके dx यहाँ ले आएंगे तो यही चीज आ जाएगी। अब यहाँ पर y1 स्क्वायर को y1 के रिस्पेक्ट में इजीली हम डिफरेंशिएट कर सकते हैं। दिस y1 स्क्वायर एंड x स्क्वायर माइनस 1 का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में होगा 2x और 1 का कांस्टेंट है, इसका डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा। y स्क्वायर का y के रिस्पेक्ट डिफरेंशिएशन 2y होगा और d by dx ऑफ y को हम लिखेंगे y1। आप देख सकते हैं y1 स्क्वायर का y1 के रिस्पेक्ट डिफरेंशिएशन हो गया 2y1, दिस इज x स्क्वायर माइनस 1 एंड d by dx ऑफ y1 को y2 लिखेंगे प्लस 2x y1 स्क्वायर और राइट हैंड साइड में 2m स्क्वायर y1। अब होल इक्वेशन को 2y1 से डिवाइड करेंगे, इससे 2y1 डिवाइड करेंगे तो x स्क्वायर माइनस y2 आ जाएगा प्लस x y1 आ जाएगा, यहाँ से m स्क्वायर y आएगा। नाउ वी ट्रांसफॉर्म m स्क्वायर y इन द लेफ्ट हैंड साइड, वी राइट दिस x स्क्वायर माइनस y2 प्लस x y1 minus m square y is equal to 0. Now we differentiate this by Leibniz theorem n time. Differentiate n times by Leibniz theorem. So we write here operator dn x square minus 1 y2 plus dn x y1 minus m square dn y is equal to 0. We know that Leibniz theorem is used when we have to find nth derivative of the product of two functions. Here one is x square minus 1 and another is y2. So we take x square minus 1 is u and y2 is v and apply here Leibniz theorem. First we write u that is x square minus 1 dn v that is y2 plus nc1 du that is x square minus 1 dn minus 1 v that is y2 plus nc2 d2u that is x square minus 1 dn minus 2 v that is y2. Now we can see here when we differentiate this x square minus 1 one time we get 2x, and when we differentiate this 2 times we get 2, and further next term will be 0 because next term will be t cube x square minus 1. तो आप देख सकते हैं जो फर्स्ट टर्म है x स्क्वायर माइनस 1 y2 इसको n टाइम डिफरेंशिएट करेंगे, इसमें लेibniz थ्योरम अप्लाई करेंगे तो x स्क्वायर माइनस 1 को u सपोज करेंगे और y2 को v सपोज करेंगे। तो पहले u लिखेंगे यानी x स्क्वायर माइनस 1 dn v के प्लेस पे y2 आ गया प्लस nc1 du u के प्लेस पे x स्क्वायर माइनस 1 हो गया dn माइनस 1 v के प्लेस पे y2 हो गया प्लस nc2 d2 u के प्लेस पे x स्क्वायर माइनस 1 dn माइनस 2 v के प्लेस पे y2 हो गया। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर फर्स्ट टर्म को डिफरेंशिएट करने पर हमको 3 टर्म्स मिलेंगे लेibniz थ्योरम से। अब हम इसी तरीके से x और y1 जो है इसको u और v सपोज करेंगे।
तो जब एक्स वाई को हम y1 को u और v सपोज करेंगे तो इसमें फर्स्ट u दैट इज x dn v दैट इज y1 प्लस nc1 du दैट इज dx dn माइनस 1 y1 दिस हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर हमको टू टर्म्स मिलेंगे। आप देख सकते हैं dx यानी x का डिफरेंशिएशन 1 होगा, नेक्स्ट टर्म में d2x होगा यानी x का 2 टाइम डिफरेंशिएशन करने पर 0 हो जाएगा। तो सेकेंड टर्म से हमको डिफरेंशिएशन करने पर लेibniz अप्लाई करने पर टू टर्म्स मिलेंगे। नाउ इन द लास्ट टर्म दिस कैन बी रिटन m स्क्वायर dny is equal to 0. Now we can write here this x square minus 1 dn y2 means differentiate y2 n times, so this n add with 2 we get yn plus 2 plus nc1, value of nc1 is n, and dx square minus 1 that means x square minus 1 differentiate one time, this gives 2x, and dn minus 1 y2 means y differentiate y2 n minus 1 time, so this n minus 1 add with 2 we get yn plus 1 plus value of nc2 plus value of nc2 is here, this is n minus 1 divided by 2, and d2 x square minus 1 means that is x square minus 1 differentiate 2 times we get 2, and dn minus 2 y2 that means y2 differentiate n minus 2 times, so this n minus 2 add with 2 we get yn because this 2 and 2 is cancelled out. In the next term this x and dn y1 means y1 differentiate n time, that is yn plus 1 because this n add with 1 we get n plus 1 plus nc1 that means n, value of nc1 is n, and dx means differentiation of x is 1, dn minus 1 y1 means y1 differentiate n minus 1 time, so this n minus 1 add with 1, this one is cancelled out, so it gives yn minus m square dny, that is yn, because y differentiate n time we get yn. Now this can be written as x square minus 1 yn plus 2 plus 2n x yn plus 1. Here we can see that in the second term and in the fourth term this x yn plus 1 is common, so we can write 2n plus 1 multiplied by here x yn plus 1 plus, we can see here this 2 is cancelled out by this one, and this here from the third term, fifth term and sixth term yn is common, so we write here n square minus n, because n multiplied by n minus 1 we get n square minus n, and this plus n, and this minus m square yn is equal to 0. Now we can see this n is cancelled out, so it gives x square minus 1 yn plus 2 plus 2n plus 1 x yn plus 1 plus n square minus m square yn is equal to 0. आप देख सकते हैं यहाँ पर x स्क्वायर माइनस 1 y2 में x स्क्वायर माइनस 1 को u सपोज किया गया, y2 को v सपोज किया गया, और इनके प्रोडक्ट का एन टाइम डिफरेंशिएशन करने के लिए लेibniz थ्योरम का यूज करेंगे। तो फर्स्ट वी राइट हियर u दैट इज x स्क्वायर माइनस 1 dn v इज y2 plus nc1 du that is x square minus 1 dn minus 1 v that is y2 plus nc2 d2 u that is x square minus 1 dn minus 2 v that is y2। तो हम यहाँ देख सकते हैं कि जो x स्क्वायर माइनस 1 y2 के प्रोडक्ट का इनर डेरिवेटिव निकालेंगे तो उससे 3 टर्म्स हमको मिलेंगे। फिर आपका जो नेक्स्ट टर्म होगा वो d क्यूब x स्क्वायर माइनस 1 होगा। x स्क्वायर माइनस 1 को जब 3 टाइम आप डिफरेंशिएट करेंगे तो डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा, क्योंकि बिकॉज 1 टाइम में 2x मिलेगा, 2 टाइम में 2 मिलेगा, 3 टाइम में 0 हो जाएगा क्योंकि 2 कांस्टेंट होगा। फिर सेकंड टर्म में हम देख सकते हैं x और y1 का प्रोडक्ट है, x को हम u अज्यूम करेंगे, y1 को v अज्यूम करेंगे, इसका इनर डेरिवेटिव लेibniz थ्योरम से निकालेंगे।
तो पहले u लिखेंगे, u के प्लेस पे x है, dn v के प्लेस पे y1 है, प्लस nc1 du u के प्लेस पे x है, dn माइनस वन v के प्लेस पे y1 है। और नेक्स्ट टर्म इसका जीरो हो जाएगा बिकॉज यहाँ पर dx है, तो s का डिफ्रेंसिएशन वन टाइम में है 1 आएगा। जब t2s लिखेंगे तो उसमें सेकेंड टाइम में डिफ्रेंसिएशन जीरो हो जाएगा। लास्ट टर्म में आपका ये इसी तरीके से माइनस का एम स्क्वायर डी एन वाई है। अब आप देख सकते हैं यहाँ पर y2 को n टाइम डिफ्रेंशिएट करना है क्योंकि dn y2 है, तो ये n जो है 2 में ऐड हो जाएगा, तो इसको yn प्लस 2 लिखेंगे। nc1 की वैल्यू n हो जाएगी, x स्क्वायर माइनस 1 को 1 टाइम डिफ्रेंशिएट करेंगे 2x होगा, और 1 कांस्टेंट है, इसका डिफ्रेंशिएशन 0 हो जाएगा। dn माइनस 1 y2 मीन्स y2 को n माइनस 1 टाइम डिफ्रेंशिएट करना है, यानी n माइनस 1 2 में ऐड होगा, तो ये yn प्लस 1 लिखेंगे। nc2 की वैल्यू n माइनस 1 अपॉन 2 होगी। x स्क्वायर माइनस 1 को जब हम 2 टाइम डिफ्रेंशिएट करेंगे तो हमको यहाँ पर 2 मिलेगा, क्योंकि फर्स्ट टाइम में यहाँ 2 मिलता है, सेकेंड टाइम में 2 मिलेगा। फिर dn माइनस 2 y2 का मतलब y2 को n माइनस 2 टाइम डिफ्रेंशिएट करना है, तो ये n माइनस 2 2 में ऐड हो जाएगा, 2 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से yn मिल जाएगा। इसी तरीके से x और y1 को n टाइम डिफ्रेंशिएट करेंगे dn y1, तो यहाँ से आपको n 1 में ऐड हो जाएगा, तो yn प्लस 1 मिल जाएगा, यानी xyn प्लस 1 प्लस nc1 की वैल्यू आप देख सकते हैं यहाँ से n होती है, और ds का मतलब x का डिफ्रेंशिएशन 1 हो जाएगा। dn माइनस 1 y1, तो y1 का n माइनस 1 टाइम डिफ्रेंशिएशन करेंगे, तो ये n माइनस 1 1 में ऐड हो जाएगा, तो 1 1 कैंसिल होके यहाँ से हमको yn मिलेगा, ये हो जाएगा। माइनस का m स्क्वायर और dn y का मतलब y को n टाइम डिफ्रेंशिएट करो, यहाँ से yn मिलेगा। अब आप देख सकते हैं ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, और जो सेकेंड टर्म है और ये फोर्थ टर्म है, इन दोनों में से xyn प्लस 1 कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ से 2n मिलेगा, यहाँ से 1 मिलेगा, तो ये 2n प्लस 1 हो जाएगा। और जो आपका थर्ड टर्म है, फिफ्थ टर्म है और सिक्स टर्म है, इसमें से yn कॉमन लेंगे, तो यहाँ से n मल्टीप्लाइड बाई n माइनस 1 दैट इज n स्क्वायर माइनस n हो जाएगा, तो यहाँ से प्लस का n मिलेगा, ये माइनस का m स्क्वायर, ये प्लस n माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो x स्क्वायर माइनस 1 yn प्लस 2 प्लस 2n प्लस 1 xyn प्लस 1 प्लस n स्क्वायर माइनस m स्क्वायर yn इक्वल टू 0 आएगा। थैंक यू।